بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے بڑے صوبے میں جس کی حکومت ہے وہی پاکستان کی مرکزی قیادت میں آئے گا، فیڈرل میں آئے گا، اور پنجاب میں اس وقت کس کی حکومت ہوگی یہ ابھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اس وقت صورتحال ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے اس کے تعلقات ہیں، اس میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ پی ٹی آئی اب پنجاب میں قدم جما سکتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگے کیا ہوگا یہ ابھی وقت بتائے گا۔ کوئی بڑی ڈیل ہے، کمپرومائزنگ سچویشن ہے، نہیں ہے، یہ ابھی وقت بتائے گا۔ لیکن استحکام میں پاکستان پارٹی بالکل اسی طرح سے سامنے آئے گی جس طرح سے کاف لیگ سامنے آئی تھی، اور اس قسم کی پارٹیز عموماً ایک پریشر گروپ کا کام کرتی ہیں۔ پنجاب میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت جو بھی ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم لینڈ ہے جس پارٹی کا، بڑی پارٹی اس کا، چاہے وہ پیپلز پارٹی سندھ میں ہو یا پھر پنجاب میں آپ اس وقت مسلم لیگ نون کو لے لیں، پی ٹی آئی کو لے لیں، تب بھی سبھی لوگ جو ہیں اس وقت پریشانی میں ہیں کہ کون سی پارٹی اس وقت اس جگہ لیڈ کرے گی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیز چونکہ اپنا اپنا وقت مقرر کر چکی ہیں، طے کر چکی ہیں، آگے اسٹریٹجیز ہیں، لیکن عوام جن پریشانیوں کا شکار ہے اس وقت کون سا ایسا نعرہ ہے، کون سا ایسا سلوگن ہے جس کو ساتھ لے کے وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی کمپینز کو آگے چلائیں گے۔ ایک دوسرے کے خلاف جو کیسز ہیں، فیض آباد دھرنا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں وہ تاریخی ریمارکس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت عوام کی بہتری کے لیے فوری طور پہ اقدام کرنا، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں آتے ہی مہنگائی ختم کر لوں گا یا بجلی کے ریٹس ختم کر لوں گا یا آپ کو شارٹ ٹرم کوئی ایسی امید دلا دے سکتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ عوام نہ سن سکتی ہے اس قسم کی باتیں، اور نہ ہی کوئی پارٹی اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی نعرہ لے کے آتی ہے تو ہو نہیں سکتا ایسا کہ وہ فوری طور پہ کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل بتا سکے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن تو وہی ہے کہ کیا انتخابات اب بھی اپنے وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ رزاق باجوہ صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محسن کاظمی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمیں فون کال پہ جوائن کریں گے مبشر میر صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں اور کچھ دیر میں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رزاق باجوہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ رزاق باجوہ صاحب، آپ کا ہوم گراؤنڈ سندھ، کتنی امیدیں ہیں کہ آپ یہاں پہ لیڈ کر جائیں گے اور سندھ ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چہرے کی بائی دا وے مسکراہٹ بتا رہی ہے، یہ تو سوال ہی نہیں تھا کرنے والا، لیکن رزاق باجوہ صاحب آپ جواب دے دیں پھر میں آپ کو سوال حیران کرتی ہوں، ہوں۔ ہم ملکی سطح کی پارٹی ہیں الحمدللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کاوش کوششیں اور امید رکھتی رزاق ہے۔ باجوہ صاحب، آپ نے تو شروع میں ہی میرے جو ہے وہ آسان خطا کر دیے۔ آپ پہلے تو یہ کہیں کہ ہم سب سے پہلے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ الحمدللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو اگر بنیں گے، ظاہر سی بات ہے آگے اگر ہوگا کچھ انہیں کوئی وزیر اعظم بننا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا یہ سوال ہے کہ سندھ کا آپ نے ہمیں کہا کہ سندھ تو ہے ہی ہمارا، سندھ میں تو ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں، اور ہم سندھ تو ظاہر ہے ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، وہ ہماری پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن ہم تو اس بار پنجاب میں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ دینے کی پوزیشن میں ہیں، بلوچستان میں ہیں اور کے پی کے میں بھی الحمدللہ۔ جس طرح لوگ درجوگ پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں، بڑی اچھے لوگ پارٹی میں، جو ہمیں کئی بہت عرصہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی سے جا چکے تھے یا کچھ لوگوں نے انہیں ہمارے سے جدا کر دیا تھا، تو آصف علی زرداری صاحب ہمارے کو چیئرمین اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ڈیرے جمائے میں لاہور میں انشاءاللہ، اور جس طرح سے لوگ شمولیت کر رہے ہیں تو ہمیں تو امید ہے الحمدللہ کہ ہم بہت بہتر رزلٹ دینے کی پوزیشن میں۔ سر، آپ کو امید ہے بہت بہتر رزلٹ ہوں گے، لیکن یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ دنوں پہلے آپ کی پارٹی کے ایک رہنما میرے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ حافظ نعیم کی ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ایک چھوٹے سے اسٹیک ہولڈر ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ آگے، لیکن مجھے بتائیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اگر کراچی میں حافظ نعیم صاحب ایک کال دے دیتے ہیں تو لوگ ان کی کال پہ لبیک کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا، پی ٹی آئی کا تھا، اس نے کہا کہ ہاں مہنگائی ہے، یہ پیٹرول جا رہا ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو ان کی کال پہ لبیک کہا گیا، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کیا یہ آپ کے لیے الارمنگ صورتحال نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب بالکل ایک پارٹی کے کراچی کے پریزیڈنٹ ہیں، جماعت اسلامی کے، وہ سیاسی ورکر ہیں، یہ ساری باتیں ان کے لیے قابل احترام بھی ہیں ہمارے لیے۔ وہ ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس شہر کے لیے، ہم اس سے بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں رہا کہ حافظ صاحب کی پارٹی،
देखिए उनके पास तो एक सूबाई की सीट है, 6 करोड़ की आबादी है सूबा सिंध की, एक सूबाई असम्बली की सीट मिली उन्हें लियारी से। और जो जो बकाया जो कराची में उन्हें लोकल बॉडी में मैंडेट मिला है वो तो एमकेएम के बाईकाट की वजह से मिला, और सिर्फ एक ही जिले से ज्यादा उनको मैंडेट मिला, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। बकाया तो पाकिस्तान, और उसके बावजूद एमकेएम के बाईकाट के बावजूद, और उन्होंने जिस तरह का एक दावे किए थे या कैंपेन चलाई जिस पे अरबों रुपए खर्च किए जमात इस्लामी ने, हालांकि उनके पास कोई जरिया माश नहीं है कमाने का। उस पार्टी के सर पास आप लोगों के पास है? नहीं, हमारे लोग तो फिर भी कारोबार करते होंगे, जो जिम्मेदार सर हैं, मैं आपको बता जागीरदार देती हूँ, हैं। जमात इस्लामी का किसी भी पार्टी हम के उस पे बात हुकूमतों नहीं में करना रहे चाहिए, हैं, लेकिन चले चार पैसे बाइस- हमने कमा लिए होंगे सर, हम बाइस हुकूमतों नहीं से। होते। ये भी बताएं ना, ये जमात मैं बार बार मुझे दोहरानी पड़ती है, लेकिन जो लोग मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं सबको ये पता है कि हम किसी एक पार्टी की फेवर नहीं करते। लेकिन अगर जमात इस्लामी की बात की जाए, कल मेरे प्रोग्राम में बात हो रही थी मंशूर की, वाहिद पार्टी है जो अपने मंशूर पे अभी तक चल रही है और बाकी उसके तहत काम कर रही है। आप दूसरी पार्टी जमहूरियत, उसी पार्टी में जमहूरियत है, बड़े बड़े रहनुमा, खुद आपकी पार्टी के रहनुमा सब लोग कह चुके हैं जमहूरियत है। तीसरी बात ये है, जहां पे फंडिंग की बात आती है तो उनको उनके अपने वर्कर्स, कारकुनान जो काम कर रहे हैं वो खुद से उनके पोस्टर्स बनाते हैं और फिर शहर में लगाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान की, चले मैं सबसे बड़ी जमात मान लेता हूँ, मुझे बताएं कि उनके पास क्या है? एक एमएनए, एक सेनेटर और एक एमपीए, और 24 करोड़ आवाम का ये मुल्क है उनके पास। अच्छा, उस पर भी हमें कोई एतराज नहीं अगर आवाम ने उन्हें वोट नहीं दी। पिछली बार जब तहरीक इंसाफ की जो इस 18 से पहले जो गवर्नमेंट बनी थी केपीके में, उसमें सिराजुल हक साहब उनके जो अमीर हैं वो उसका हिस्सा थे, उनके वजीर खजाना थे। इमरान खान की जो केपीके में फर्स्ट टाइम हुकूमत बनी थी उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या हाल किया है इस सूबे का उन्होंने, वो कभी डिफॉल्टर नहीं हुआ हमारा केपीके। ये दो बार जो उन्होंने हुकूमतें बनाई है, एक में जमात इस्लामी उनकी इत्तेहादी थी और एक में नहीं थी, तो आप देख लें कि केपी के चले आपके लिए बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि आगे जो इत्तेहाद हमें नजर आ रहा है, मैं उन पार्टीज के नाम ही लिख रही थी, वो पार्टीज जो भी इत्तेहाद कर रही हैं वो पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम दे सकती हैं। लेकिन आगे चलते हैं, पैनल आज मेरे साथ काफ़ी बड़ा है और इस वक्त हम चलते हैं मोहसिन काज़मी साहब की तरफ। मोहसिन काज़मी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त कोई पार्टी अक्सरियत ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? कराची की बात नहीं, मैं और पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ये तो तयशुदा अगर इलेक्शन शफाफ हुए और इंजीनियर नहीं हुए, बहरहाल एक पार्टी तो जीतेगी। जिस पार्टी को बाहर निकालने की बात की जा रही है वो, ठीक है, यही पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है। हम तो ये बड़े परेशान हैं कि आप अपने सामने 1970 का इलेक्शन रखिए, आप अपने सामने बांग्लादेश की वजूहात रखिए और उसके बाद उससे तजुर्बा हासिल कीजिए। ये गलती तो कीजिएगा नहीं आप। अगर इलेक्शन आपने ऐसा कराया, किसी को अंदर कर दिया, किसी को इजाज़त दे दी। आज ही खड़े हुए एक जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, तो मैं हैरान ये था कि राना सनाउल्लाह साहब जिस पार्टी के, उनकी पार्टी का सरबराह तो कानूनी तौर पे मुजरिम है, इश्तिहारी है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, और आप अभी खड़े होकर कह रहे हैं फुला फुला को नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो जिसका भी फैसला भी नहीं हुआ, जबकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोई अदालत से। अच्छा, किसको इलेक्शन लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, ये फैसला तो अदालत करेगी, ये हुकूमत नहीं करे, ना कोई इदारा करे, क्योंकि बहुत इस वक्त अवाम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, मुतासिर भी है, और इंतज़ार कर रही है कि वो वक्त आए कि हम बैलेट बॉक्स में जाके वोट डालें, वहीं उनको जवाब मिलेगा, अवाम का जवाब वहीं नजर आएगा। अवाम का जवाब ले कोई रहा है? आपको लगता है कोई प्रेडिक्शन, आप प्रेडिक्शन ही देते हैं, कोई आपको लगता है कि अवाम का जवाब कोई लेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि अब मैंने शर्त लगाई ना, अगर आपने शफाफ इलेक्शन कराए तो जवाब अवाम का बड़ा सख्त मिलेगा आपको, और इंशाल्लाह मैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख रहा हूँ, आप देखिए ये पाकिस्तान बहुत ही बदतरी की तरफ जा चुका है, खास तौर पे 16 महीने की जो हुकूमत है। लेकिन अगर अवाम के और किसी पार्टी को अगर माइनस नहीं किया जाता तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। हाँ, देखिए पहली बात ये इंशाल्लाह माइनस कर ही नहीं सकेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, इंटरनेशनल दबाव भी है, अदालतें भी मौजूद हैं, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अदालत को लेके चल रहे हैं, उनके आज के फैसले या बहुत लिबरल हो के और बहुत माशाल्लाह तरीके से कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नामुमकिन है कि आप एक पार्टी को साइड करते हैं। अब रहा सवाल ये कि पार्टी के सरबराह को हटा दें। यहाँ तो ये खबरें आ रही हैं कि जिनको आपने हटाया था वो भी आने को तैयार हो रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते बनाए जा रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ भी आए, सब आए, मुजरिम हो या मुलजिम हो, सब इलेक्शन लड़े, ये फैसला अवाम पे छोड़ दें और उनके साथ जो सलूक करना वो अदालत पे छोड़ दें। अब अगर आप इस तरह का इलेक्शन कराएंगे तो आप यकीन जानिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए आज़ाद अगर अपनी राय नहीं दे सकते हम तो फिर इलेक्शन की क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसला साजों को पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि भाई इस दफ़ा अगर आपने सही करवा लिया तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें कि चीज़ें बेहतर ही होनी है, ऐसा नहीं होना कि अब कोई ऐसी बात हो कि किसी फैसला साज की वजह से कोई गलत शख्स आके बैठ जाए। ठीक है ना, जो फैसला साज हैं या मंसूबा साज हैं, जो भी लोग हैं, आप ये बताइए कि किस आस पे वो नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हमने आपको क्लीन चिट्ठी दे दी, आ जाए। मैं तो पहले भी करके गया हूँ, मैं आपको आज भी फिर कह रहा हूँ 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आएंगे। भाई ये मोहसिन काज़मी साहब की बातों को बड़ा गौर से सुना करें, इनकी बड़े जो है ना वो कनेक्शंस कहीं और से होते हैं। चलिए इस प्रेडिक्शन को भी देख लेते हैं, 21 अक्टूबर कोई बहुत दूर नहीं है, पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद अपने गेस्ट से मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है नदीम बाकी मौलवी साहब ने। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन सा ऐसा स्लोगन है जिसको कोई भी पार्टी लेके जाएगी और अवाम उसको वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई शॉर्ट टर्म कोई सलूशन तो नज़र आ नहीं रहा कि अवाम कहे कि जनाब ये पार्टी ठीक है, इसको वोट देना चाहिए। दूसरा इसी क्वेश्चन का पार्ट ये है कि क्या इस सेटअप में किसी नई जमात का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई नई जमात बन जाए, उसको अवाम वेलकम करेगी, ठीक है जनाब ये नहीं ये सही, ये हम इनको वेलकम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो वोटिंग का सिलसिला है वो शख्सियत के ऊपर होता है, बिरादरी के ऊपर होता है, जज्बात के ऊपर होता है। और आप देखते हैं आखिरी मोमेंट में भी अगर कोई ऐसी हालात बन जाते हैं तो लोग माजी को भूल जाते हैं और हाल में रहते हैं। पाकिस्तान का जो वोटर है वो डेडिकेटेड वोटर होता है और आप देखें कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जहाँ पे आप किसी को भी खड़ा कर देंगे वो उस इलाके का जो रहनुमा होता है, जो कई सालों से जीत रहा होता है, वही जीतता है। अब रहा सवाल कि जी हुकूमत किस तरह से बनेगी, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, किस तरह से, तो यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आएगी, क्योंकि कोई भी एक पार्टी को अक्सरियत के साथ वोट मिलना बड़ा मुश्किल होगा ऐसे हालात में। मेरा जो क्वेश्चन है, किसी पार्टी के पास क्या ऐसा नारा है कि वो आवाम को दें, वो स्लोगन हो कि जिसकी वजह से आवाम उनके पीछे आए। नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त जो स्लोगन दिया एहतसाब का, वो फंस हो गया बिल्कुल, वो फ़ायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि फ़ौरन से उनके भाई गए, उन्होंने कहा भाई हाथ हौला रखना है, आपको नहीं करनी ऐसी बात। वो भी उनके लिए उन्होंने कहा कि अवाम शायद इस पे आ जाए, लेकिन अवाम को तो क्या करना था, फैसला साजों ने कहा कि जितना तुम्हें दिया गया है इतने पार्ट में रहो, इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे अवाम के लिए क्या है, कुछ ऐसा कोई बिलीव करेगा कि ये लोग हमारे मजीद मसाइल हल कर सकते हैं? देखिए अवाम जो है सियासतदानों के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भरोसा खत्म कर चुके हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं कि सन 2017 से लेके अभी तक किसी ने महंगाई कम नहीं की। अगर हम डॉलर की बात करते हैं 110 से 180 पीटीआई, 180 से 280 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, क्योंकि वो सब इसका हिस्सा थे। हम ये नहीं कह सकते बचा कौन। अब आप देखें ना, दोनों महंगाई को देख ले तो अब डॉलर किसने किया जी उन्हीं इदारों को जिनको लोग कहते हैं कि जनाब के फला फला, यानी जो कहानियां क्रिएट होते हैं, उन्हीं इदारे ने हमेशा से, चाहे वो बालाकोट का जलजिला हो या माशी तौर पे आप देखें, जब आपको याद होगा एक जमाने में कराची में निकलना मुश्किल था, या आज का दौर ले ले जहां पे डॉलर, आजकल की बात कर ले, जो रेंजर्स के क्रैकडाउन हो रहे हैं, वो क्या कराची में कोई मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है, यानी कि जहां जहां हाथ डाले जा रहे हैं वो आप तस्वीर नहीं कर सकते। चीनी माफिया, डॉलर माफिया, खाने पीने की गंदम माफिया, स्मगल डोरा अफगानिस्तान, गैर मुल्की अफगानियों को दाखिल होना, ये सारी चीजें जितनी भी आप देख लें, सोने के ऊपर जितनी भी तहकीकात हो रही है, ये एक माफिया, यहाँ तक के हाइड्रेंट माफिया, कुछ जितनी भी माफिया है, ये आज की नहीं है, ये कई सालों की। और ये सारे सियासतदान जो है सिर्फ और सिर्फ उस आइन को देखते हैं जिस आइन के अंदर उनका इलेक्शंस की बात हो, ताकि वो दोबारा आ जाए। मगर वो आइन जो कि सबसे अहम आइन है, पाकिस्तान का आइन है कि बच्चों की तालीम, बच्चों की फ्री तालीम 6 साल से 16 साल की उम्र तक
उस आइन के ऊपर आपने कभी नहीं देखा होगा। हमने बातें बहुत सुनी है, रोटी कपड़ा मकान हर चीज के बारे में, मगर हमने ये देखा है कि जब से पाकिस्तान बना है रोटी भी महंगी होती गई, मकान भी और कपड़ा भी। और अब ये हालात आ गए हैं कि अब हम जब बेहतरी की तरफ आते हैं तो हमें कहा जाता है कि जनाब फला ह्यूमन राइट्स फला ये। देखिए कानूनी तौर पे एक रेवोल्यूशन आया, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था आज का कुछ दिनों पहले, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा जो फैसले होंगे कैमरा के सामने होंगे। ये होते हैं कानून में तब्दीलियां। दूसरा रेवोल्यूशन आया कि जनाब कोई भी हो आप पकड़ लें, अगर कोई डॉलर का आप देख रहे हैं कि कोई चोर बाजारी हो रही है। अब आहिस्ते आहिस्ते घेरा तंग हो रहा है, और अगर इसी तरह मसले मसाइल हल होने नजर आ गए तो मैं आज आपको बता दूं पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। जब आम लोगों के घरों से तकियों के अंदर से भी 50-50 हज़ार डॉलर निकलेंगे और फिर आप हुबुल वतनी की बात करते हैं, किसी इदारे को या सियासतदान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं, तो अपने भी गिरेबान में झांक लें कि हम खुद पाकिस्तानी कहाँ पे खड़े हैं। बहरहाल मुझे इस वक्त ज्वाइन किया मुबशिर मीर साहब ने, आप तजियाकार हैं, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मुबशिर मीर साहब, फैजाबाद धरना केस एक नया मोड़ इख्तियार कर गया है, क्या तज्जिया है आपका? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, दोबारा से जरा बताएंगे? ठीक है सर फैजाबाद धरना केस पे बहुत बातें हो रही थी, एहतसाब के भी मसाइल थे, एवरीबडी नो दैट पीछे क्या हुआ था, किसने करवाया था, किसने कहा था कि आप ये सब कुछ करें। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, पीटीवी पे चढ़ाई हुई और बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन फैजाबाद धरना उसकी सबसे पहली कड़ी है उस मामले की। ये नया मोड़ इख्तियार कर गया है, क्या तज्जिया आपका? अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें जो हमारी रियासत के अंदर ऐसे बहुत से एंटिटीज बनाई गई हैं जो बवक्त ज़रूरत हमारे यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, कभी जहाद के नाम पे, कभी मुल्क के अंदर एहतसाब के नाम पे कैंपेन चलाना, ये चीज़ें। तो इस तरह की बहुत सी एंटिटी जो है ना, छोटे छोटे ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती रही हैं और किसी न किसी मौके पे उनको फिर ख़त्म भी किया जाता है। कुछ लोग ताकतवर भी हो गए हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो जिहादी तंजीमें जिन्होंने बनाई थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। अब यह है कि इनको आप डिसमेंटल करना भी कोई आसान नहीं होता, बनाना तो बड़ा आसान है। हमारे यहाँ कोई चीज़ जो है ना वो प्लानिंग से नहीं बनी हुई, बहुत सी चीज़ें हमें बाहर से, जैसे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कहने पे हमने मैक्सिमम काम किए हैं। हमारी अपनी इख्तरा ना होने के बराबर है। हमारा अपना कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं जिसने ये कहा हो कि भाई ये चीज़ आपको फ्यूचर में इस तरह होगी और इस तरह आप लोग इसको चलाएंगे। जब अफगान जहाज की बातें हो रही थी तो उस वक्त ज़ियाउल हक साहब से भी किसी ने पूछा कि जब ये ओवर हो रहा है तो रशिया जो है वो ख़त्म टूट रहा है, वो यूएसएसआर, तो आप इनको कहाँ लेकर जाएंगे? तो ऐसे ही शायद उन्होंने, सुनने में आता है कि उन्होंने कहा कि ये कश्मीर जहाज में शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये एक ऐसी समझ लें कि गुफ्तगू है कि जिसके पीछे ना कोई रिसर्च होती है, ना उसके पीछे कोई प्लानिंग होती है। लेकिन सर उनको ये नहीं पता, उन्होंने गुफ्तगू की पाकिस्तान को कहा जाता है तालिबान को हमने जन्म दिया है, लेकिन हाँ, क्या आपको लेकिन नहीं लगता जन्म कि हमने चलिए दिया? एक जुमले में मुझे बता दें कि क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त हमारी जरूरत थी ये करना, वरना हमारा पड़ोसी कौन होता फिर? मेरा ख्याल है कि ये भी एक परसेप्शन थी कि उनका जो है ना वो ये नजरिया था कि उन्होंने इस तरह करना है। आज हम जो है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे गर्म पानियों पे आओ, कभी हम किसी को कह रहे हैं, कभी हम किसी को कह रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर जो नई चीज जो है ना उसको एक्सेप्ट करने वाली कौमें बहुत कम है। हमारे यहाँ जो चीज, मैं पहली एक चीज अर्ज कर रहा हूँ ना, वो ये है कि कोई चीज हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। हमने कोई चीज अपनी रिसर्च से नहीं कहा कि इसको यूं करना है। आप रिसर्च करें, अफगानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस को अफगानिस्तान की हुकूमत ने खुद बुलवाया था, बब्र कार्मल की हुकूमत ने, उन्होंने खुद उन्हें इनवाइट किया था कि आप इधर आए। लिहाजा ये एक बड़ी, हम रिसर्च में तो जाते ही नहीं है ना, कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज किस वजह से हुई थी। और ये कोई, और जिस तरह वो जंग लड़ी गई है ना, उससे देखें कि उसने हमें कोई फायदे कितने दिए हैं और नुकसान कितने दिए हैं। हमारी अपना मुआशरे का फैब्रिक सारा तबाह हो गया है। जितना भी आपकी सोसाइटी 70s की सोसाइटी थी,
60 की सोसाइटी थी, उससे टोटली ये डिफरेंट सोसाइटी बन गई है जिसको हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उसमें ऐसे एलिमेंट भी इतने ताकतवर हो गए हैं कि जो रियासत को चैलेंज करते हैं। सबसे अहम चीज ये है, इसको आप देखें कि रियासत को चैलेंज करने वाले कितने ग्रोह पैदा हुए हैं। और छोटी छोटी रियासतें तो पहले ही वजूद रखती थी, लेकिन ये जो इतने इतने बड़े ग्रुप बने हैं जिनके पास इस वक्त आपके मदरसों की मैं बात करूंगा ना, अगर जो खास तौर पे अफगान जहाद में शामिल थे, 22 लाख बच्चा मदरसों में का स्टूडेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, 20,000 मदरसों में। सर, पाकिस्तान में मजहब कार्ड इस्तेमाल और वो 22 लाख बच्चे ने पाकिस्तान की में कहाँ खपना है? आप मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढ के बता दें, ये 22 लाख बच्चा कहाँ पे खपेगा, क्या करेगा वो तो और भी पाकिस्तान बहुत की सारी मुआशरे के वजूहात अंदर? हैं। जब फीस महंगी हो गई है, खाना पीना महंगा हो गया है, मदरसे में बच्चे को खाना पीना भी मिल रहा है, फीस भी नहीं है, तो फिर पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो तालीम के लिए डालेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम देखिए, है। मेरी बात सुने, ये किस तरह मिल रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे आता रहा है, ये सब हम जानते हैं और सारे हमारे इदारे भी जानते हैं। लेकिन यह है कि उसकी आगे खपत क्या है मुआशरे के अंदर? खपत वही है ना कि जब पार्लियामेंट के सामने वर्दी वाले लोग कमीज शलवार में खड़े किए जाएं तो खपत फिर वहां पे यही है ना, इसका मतलब है कि हमने जो आपने फैजाबाद की बात की है, तो इसका मतलब है कि हमने ऐसे लोग जो हैं वो क्यों ऐसे ग्रुप जो है वो तैयार रखे हुए हैं कि जिन्हें हम बवक्ते जरूरत एक पॉलिटिकल कोर्स चल रहा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा हो, उसके अंदर आके वो जो है वो रखना डाल दें और एक नई चीज जो है वो शुरू कर दें। और वो ऐसी चीज शुरू करें कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सारे का सारा जो है वो तशद्दुद पे चला जाता है। लिहाजा हमें तो ये सोचना चाहिए, सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट में आइंदा 25 साल, हमारे 75 साल गुजर गए हैं, अगले 25 साल जब हम अपने 100 साल इंशाल्लाह जो है वो पूरे करेंगे, उस वक्त हमारी स्टेट का क्या स्टाइल होगा, किस किस्म की स्टेट दुनिया के सामने हमारी होगी। हमारा नौजवान जो अभी मायूस होकर बाहर जा रहा है, क्या वो कौन से लोग होंगे जो इस रियासत को बेहतर करने के लिए काम करेंगे? अगर हम साथ ही रहिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका मौक़िफ़ लूंगी मैं। रज़ाक बाजवा साहब, कौन लोग होंगे? जब हम आपसे पूछते हैं तो आप तो फौरन से कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी। ठीक है जनाब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वही तो बात जहाँ से शुरू हुई थी। अब ये तमाम आपने गुफ्तगू सुनी है, प्लान क्या है? मैं पूरा प्रोग्राम ही इस पे कह रही हूँ कि आपकी पार्टी का चलें जनाब, उम्मीद है बहुत, एस्टैब्लिशमेंट भी सही है, आगे आपको मज़े भी आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये प्लान क्या है? कौन लोग होंगे जो इन चीज़ों को संभालेंगे? देखिए, इंशाल्लाह इस मुल्क को यही नौजवान ही संभालेंगे। जो आने वाली हमारी नस्लें हैं या जो मौजूद अभी नौजवान हैं, वही आगे जाके इस मुल्क की भागदौड़ संभालने की सलाहियत और ताकत रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इतना सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन इस कदर भी ख़राब नहीं है कि हम बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चेयरमैन, हम इसलिए कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब को कि वो भी नौजवान है, वो भी सारे पॉलिटिशियन में मेरा ख्याल है कि कम उम्र सियासतदान है। हम ये बड़ी उम्मीद लगाए हमने। देखिए, अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जब हमें इक़्तिदार मिला, हमें 73 में मिला या हमें बेनज़ीर साहबा को 2 बार मिला, या हमने जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम हुए हैं या जो किए हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। या तो हमें बता दिया जाए कि किसी और जमात ने क्या किया, तहरीक सर मुझे जो शिकायत है ना, आपकी पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, बहुत दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं तो कोई कानूनी शिकम होता है, आपके लीडर की को जुडिशल मर्डर कहा जाता है, उनकी फांसी को, बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान पे सियाह धब्बा है जुडिशल मर्डर का बड़ी। लेकिन आप लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो इस किस्म के कवानीन पे बात क्यों नहीं करते? फिर केसेस क्यों नहीं खोले जाते? फिर चीज़ें आगे सामने क्यों नहीं आती? जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त आपको चूंकि स्मूथली काम करना होता है तो आप उस वक्त तो कुछ बोलते ही नहीं है। फिर किसी और की पार्टी होती, किसी और की होती, उस वक्त तो आप बड़ी बातें कर रहे होते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कहना कि हम नहीं बोलते, हमने फांसियों पर पाबंदी लगाई थी, ये रिकॉर्ड पर है सारी बातें। हमने इसीलिए हमारे दौर में कोई फांसी नहीं चढ़ा, हमारे दौर में कोई सियासी रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। हम हमारे दौर ये हम नहीं किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। बकाया तो दीगर पार्टियों में किसी पार्टी पर भी तनकीद नहीं करता हूँ, जिनको भी इक़्तिदार मिला सब। लेकिन इस मुल्क की जहाँ तरक्की की बात है, जहाँ इस मुल्क में जो कामयाबी से चलाने की बात है, देखिए
ابھی حالیہ جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے اور یوسف رضا گیلانی صاحب لاسٹ ٹائم میں پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی یہ جو سی پیک کے اب تو سارے دعوے دار ہیں، سی پیک یہ آصف علی زرداری کا خواب تھا، یہ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے چائنا سے لایا گیا تھا، اب اس کے مالک سارے بن گئے۔ چلیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کی سیاست کو ایک طرف کر دیا جائے، ہم 2023 اور 24 میں آ رہے ہیں، ابھی بھی ہم جو ہے 20ویں صدی کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور انہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہی پیٹرن آگے بھی چل رہا ہے۔ آپ کی طرف آئیں گے محسن کاظمی صاحب، یہ 20ویں صدی کا پیٹرن اب چل سکتا ہے؟ ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں لیکن 2024 پہ بھی آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں بدل رہی ہیں، ابھی بھی ہم وہی باتیں کر رہے ہیں پرانے، ہم نے یہ کیا ہے، لیکن نظر کہاں آ رہا ہے؟ پہلی چیز ہم بھائی صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے پیپلز پارٹی جب پہلی دفعہ حکومت میں آئی اور زرداری صاحب صدر بھی بن گئے، تو ان کا ایک بڑا زبردست ایک نعرہ تھا پنجاب کے لیے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو الگ کریں گے، پوری تیاری تھی، مسلم لیگ سخت مخالفت کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کو بھی راضی کر لیا، بل بھی چلے گئے اور آپ کی حکومت ختم ہو گئی اور آپ کام نہیں کر سکے۔ تو اگر وہ آج آپ کام کر لیتے تو میں آج کہتا شاید بلاول صاحب بھی ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا قباحت ہے صوبے بننے؟ تو اچھی بات ہے کہ صوبے میں بننے اس کی چاہیے، نہیں بات کر رہا ہوں، میں ان کی غلطی کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری اکثریت نہیں تھی نا پنجاب میں، نہیں غلط کہہ رہے ہیں، 2/3 اکثریت چاہیے ہم تو گلگت بلستان پہ بھی چیزیں ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قانونی حیثیت ہم نہیں دے رہے۔ 2/3 بھائی صاحب سب چیزیں ہو گئی تھی، سب ہو گئی تھی، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں تھوڑا سا پیس پارٹی کی بات، میں خود پیس پارٹی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اب سنیے کہ پاکستان کا آئین کہ بھٹو صاحب نے بنایا اور بھٹو صاحب کی ٹیم بڑی ذہین تھی، اس آئین کے اندر یہ طے تھا کہ کوئی پرائم منسٹر تیسری دفعہ نہیں بنے گا۔ یہ آصف زرداری صاحب نے تیسری دفعہ کی دروازہ کھولا نواز شریف کے لیے، یہ غلطی کی یا نہیں کی؟ جو اصلی آئین ہے آپ اس پہ چلتے رہتے۔ 58 بھی لانے والے وہی تھے، بھٹو صاحب تھے، اور اب جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 58(2)B کی مخالفت کی ہے۔ جی اچھا، دوسرا یہ کہ جب آپ نے یہ بنا دیا اور سب کچھ کر دیا، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں جس صوبے کی آبادی 65% ہے، پوری تاریخ اٹھا لیجئے، بھٹو صاحب بھی پہلی دفعہ پرائم منسٹر اس وقت بنے جب پنجاب سے ووٹ ملا، بالکل، اور یہ پارٹی پنجاب میں بنی۔ جتنا نام بھٹو صاحب کا پنجاب میں تھا اتنا کسی کا نہیں تھا۔ یہ صفایا کیسے ہوا، میں یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے تو بڑی ہمدردی جب ایک سیکنڈ ایک بات کہنے سے بس، محترمہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کا ووٹ پنجاب میں بڑھنا چاہیے تھا یا کم ہونا چاہیے تھا؟ کم کیوں ہوا؟ کہیں آپ سے غلطی ہوئی یا نہیں؟ اب یہ غلطیاں جو ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کو وہ پارٹی کی فل فلیج آزادی نہیں نظر آ رہی ہے مجھے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں چیئرمین تو ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اب کبھی وہ صدارت کر رہے ہیں، کبھی دونوں صدارت کر رہے ہیں، کبھی وہ اکیلے صدارت کر رہے ہیں۔ چیئرمین کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کون کو چیئرمین ہے؟ اس سے قبل بھی تھا نصرت بھٹو صاحب۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد تجزیہ کروں گی، اس کے بعد ندیم باقی مولوی صاحب کی طرف بھی چلیں۔